Hello everyone, how are you doing all? In today's video, we will learn about singular and plural sentences. In the last video, we learned about singular and plural words and the rules that how we can change different words with different rules. Here we will learn how can we change the sentences into singular and plural. So starting, we need to know that if the noun is singular or plural when you write a sentence. मतलब हमें पहले ये पता करना है कि सेंटेंस का जो नाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो वर्ब है वो चेंज होगा। तो जो वर्ब है वो नाउन के साथ अग्री करना चाहिए, ठीक है। The subjects and verbs must agree with one another in number. तो अगर नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब रहेगा वो भी उस हिसाब से चेंज होगा। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल रहेगा। ओके तो in present tenses, nouns and verbs form plurals in opposite ways. मतलब कि अगर नाउन है तो अगर नाउन सिंगुलर है तो जो वर्ब होगा वो प्लूरल हो जाएगा, और अगर नाउन प्लूरल है तो जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि नाउन है वो एस ऐड कर देगा और वर्ब है वो एस रिमूव कर देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द डॉग चेजेस द कैट, तो ये डॉग है वो क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, और ये नाउन है, और तो इसमें एस हमने नहीं लगाया है, बट हमारा जो वर्ब है चेजेस उसमें हमने एस ऐड किया है। मतलब कि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल हो गया, ठीक है। देन इफ द नाउन इज प्लूरल, ठीक है, तो अगर नाउन प्लूरल है डॉग्स, सो इट्स अ प्लूरल, तो जो वर्ब है वो बन जाएगा सिंगुलर विथ नो एस, राइट। सो द नाउन एंड द वर्ब मस्ट अग्री इन द फॉर्म ऑफ number. Okay, for example, a cow eats grass, so cow is singular over here and eats is plural, eats becomes plural in the present form. Okay, the present form adds s to the verb. Okay, and the next is cows eat grass, मतलब cows है वो plural हो गया, और प्लूरल का जो वर्ब फॉर्म बनेगा वो होगा ईट। क्यों? क्योंकि नाउन एंड वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर्स, ठीक है। एंड व्हेन वी चेंज सिंगुलर नाउन्स टू प्लूरल नाउन्स, we have to make sure that all the parts of the sentences are changed accordingly and not just the noun itself. So for example, look at this. She wants this dog. She सिंगुलर हो गया, प्रोनाउन हो गया, wants verb, this becomes determiner and dog is a noun. ओके तो जब उसको हम ये सेंटेंस को हम प्लूरल बनाएंगे तो she का हो जाएगा they, ओके she का प्रोनाउन होगा they, wants का हम प्लूरल फॉर्म चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा want, we remove the s, this becomes these in plural and dog becomes dogs. Okay, so when changing the whole sentence from singular to plural, we have to change all the parts of the statement. Okay, next is irregular nouns. Irregular nouns मतलब कि जिसका कुछ प्लूरल फॉर्म ना हो या जिसका कोई सिंगुलर फॉर्म ना हो,
राइट, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, हमने इर्रेगुलर नाउन्स के रूल्स, राइट। तो यहाँ पे भी some nouns have a plural form but take a singular verb. कुछ nouns ऐसे होते हैं जो plural हैं बट उनका जो verb है वो singular होगा. For example, news, athletics, linguistics, darts, billiards, mathematics, politics, luggage. Okay, these are all plural forms, right? And these do not have any singular form as we saw in the earlier video. So when we are using these nouns in a statement, we have to take a singular verb. For example, news. So news is plural form. It do not have any singular form. Okay, but the verb we have taken here is singular. Okay, the verb we have taken here is singular. The news is at 6:30 p.m. मतलब जो न्यूज़ आएगी वो 6:30 p.m. मतलब शाम को आएगी. तो ये हो गया प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन, बट उसका जो हमने वर्ब लिया वो लिया है सिंगुलर. Similarly for athletics, it's a plural noun because it do not have any singular form. Athletics is good for young people. Here, plural noun and singular verb. So, similarly for all the words. Okay, these words are plural. Yes, but these nouns are plural, but the verb that we are taking over here are singular. Okay, so the irregular noun has different verb agreement than the other nouns. Some nouns have a fixed plural form and take a plural verb. Okay, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं, उनका कोई सिंगुलर फॉर्म, वो सिंगुलर होते हैं बट उनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता. जैसे कि फॉर एग्जांपल trousers, jeans, glasses, savings. Okay, these have all the fixed plural form. Okay, they are not used in singular or they have a different meaning in the singular. ठीक है, तो जब हम ऐसे nouns यूज करते हैं जिनका ऑलरेडी एक प्लूरल फॉर्म है, तो जब verb आएगा तो verb भी होगा प्लूरल में. जैसे फॉर एग्जाम्पल माई ट्राउजर्स आर टू टाइट. ट्राउजर्स तो आप एक टाइम पे एक ही ट्राउजर पहन सकते हैं, राइट, बट तो वर्ब हमने क्या लिया है यहाँ पे आर, मतलब कि प्लूरल वर्ब लिया है. ठीक है, तो ऐसे नाउन्स जिसका फिक्स्ड प्लूरल फॉर्म है उसके साथ हम जो वर्ब्स लेते हैं वो भी प्लूरल लेते हैं. नेक्स्ट, हर जीन्स आर ब्लैक. हर जीन्स मतलब सिंगुलर, जीन्स वन जीन्स. ओके, बट हमने वर्ब यूज किया है आर, दैट इज प्लूरल फॉर्म. दोस ग्लासेस आर हिज. ये ग्लासेस उसके हैं. ग्लासेस मतलब स्पेक्टेकल्स, चश्मे. ठीक है, आर हिज, हिज मतलब सिंगल पर्सन. ठीक है, तो एक ग्लास एक पर्सन का है बट हमने वर्ब क्या यूज किया है, प्लूरल. क्यों? क्योंकि ग्लासेस जो है उसका कोई फिक्स्ड सिंगुलर फॉर्म नहीं है. ठीक है, तो ऐसे भी नाउन्स हैं जिनका ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म ही है, उसके साथ हम प्लूरल वर्ब्स लेंगे. सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स. So a noun can refer to one thing or to more than one thing, right? We already know this कि noun या तो single हो सकता है मतलब कि one quantity, या तो वो plural हो सकता है मतलब एक से ज़्यादा quantity. अब ये एग्जाम्पल देखिए, I am wearing a hat. hat क्या है, singular है. ठीक है, और एम क्या है, ये भी सिंगुलर होता है जो हम आई के साथ वर्ब यूज करते हैं.
ठीक है, मतलब मैं सिर्फ एक हैट पहना है। अब ये देखिए, देयर मस्ट बी ओवर 100 हैट्स इन द शॉप। अब हैट्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, मतलब एक से ज्यादा हैट्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया, यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया और यहाँ पे सिंगुलर नाउन हो गया। क्लियर? जब सिंगुलर नाउन यूज कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं अ हैट। ठीक है, ए डिटरमाइंस द सिंगुलरिटी ऑफ द नाउन, and when we are using the plural noun we do not use a in front of it. नेक्स्ट, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम ही रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डियर। एक डियर को भी हम डियर बोलेंगे, अ डियर, और एक से ज्यादा डियर हो तब भी हम डियर ही बोलेंगे। सिमिलरली शिप, स्पीसीज एंड फिश, इन सब के लिए भी हम वही चीज यूज करेंगे। ठीक है, सिर्फ सिंगुलर में हम ए शिप यूज करेंगे एंड प्लूरल में शिप यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी सॉ अ ब्यूटिफुल डियर एट द जू। हमने जू पे एक अच्छा ब्यूटीफुल खूबसूरत डियर देखा, मतलब कि एक डियर देखा। ओके, द डियर आर रनिंग फ्रॉम द चीतास। आर रनिंग मतलब एक से ज्यादा डियर हो गए। क्लियर? हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज किया है, मतलब जो डियर है वो एक से ज्यादा हो गए। क्लियर? सो कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नाउन्स हैं उनको हम प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो या तो जनरल में यूज हो रहे हैं या तो उनको हम अलग अलग काउंट कर रहे हैं। ठीक है, जनरल में यूज कर रहे हैं मतलब कि व्हेन देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ फिश। ठीक है, जब हम बात करते हैं एक ही टाइप ऑफ फिश, जैसे कि यहाँ पे सारी फिश एक जैसी है तो हमने इनको इन जनरल यूज किया, तब हम यूज करेंगे फिश। बट हम अगर बात कर रहे हैं एक से ज्यादा टाइप की फिश, जैसे कि यहाँ पे तीनों फिश अलग अलग हैं तो एक से ज्यादा टाइप हो गई फिश की, राइट? तब हम यूज करेंगे फिशेस। Why? Because we are referring to more than one type of fish. Okay? Now coming to collective noun. Collective noun मतलब कि जिसको हम एक बंच में यूज करते हैं, ऐसा होल कलेक्शन। ठीक है, तो अगर बंच है तो बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ रोजेस, बंच ऑफ ट्यूलिप्स, bunch of grapes, bunch of cherries, bunch of bananas, bunch of keys। ठीक है, तो ये सारे एक कलेक्टिव नाउन हो जाते हैं। ये सारे फ्लावर्स तो हैं, जैसे कि रोज, मैरीगोल्ड, लिली, these are flowers, but when we are using it all together they become bunch of flowers. Okay? Crowd. Crowd is also a collective noun. क्यों? क्योंकि we say crowd of people, crowd of admirers, crowd of protesters, crowd of kids, crowd of reporters, crowd of shoppers. Crowd मतलब भीड़, जो भीड़ कहीं पे भी जमा होती है वो। अब फ्लॉक, फ्लॉक यूज होता है एनिमल्स या बर्ड्स के लिए। फ्लॉक ऑफ शिप, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ गीज। सिमिलरली गैंग यूज होता है चोरों और डकैतों के लिए, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, गैंग ऑफ टीनेजर्स, गैंग ऑफ थीव्स। ओके, वी कैन ऑल्सो से गैंग ऑफ यूथ, राइट? एक यूथ है, उनकी जो एक यूनिटी है, उनको भी हम गैंग ऑफ यूथ बोल सकते हैं। ठीक है, हर्ड यूज होते हैं एनिमल्स के लिए, ठीक है, जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं। ओके, एंड पैक यूज होते हैं कार्ड्स, सिगरेट्स, डॉग्स, उन सब के लिए हम पैक यूज करते हैं, पैक ऑफ डॉग्स, पैक ऑफ वुल्व्स। ठीक है, सो दिस ऑल आर कलेक्टिव नाउन्स, बंच, crowd, flock, gang, herd and pack. Coming to non-countable nouns. Now, what is non-countable nouns?
मतलब कि एक ऐसा नाउन जिसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है. फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक, मनी और मिल्क. म्यूजिक हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आई लिसन टू 4 म्यूजिक्स, राइट? हम ऐसा कभी नहीं बोलते हैं. वी ऑलवेज से आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, but we do not say I am listening to 4 musics. Yes, we do not use it like that. We can say that I have come here to look for furniture, right? But we never say I have come to look for 3 furnitures. Yes, so these are the nouns which are non-countable. We always say we are playing tennis, but we do not say we are playing 2 tennises. Do we say it like that? No, we don't. Okay, so the non-countable nouns means which do not have any plural form and which cannot be counted in numbers. Thank you.